Hi everyone. Topic of our today discussion is the evidence-based practice series is going on. So we will discuss today about the management of femoroacetabular impingement syndrome. As you can see, there is a wide gap between what we are practicing and what we see in the evidence. So it is important for all of us, the clinicians and all the physios, to know about the difference and what we have to follow in as a evidence-based practice. Let's talk about what has been going on in past recent years. 2014 में दोहा एग्रीमेंट आया था जिसने एक टर्मिनोलॉजी को डिस्क्राइब किया कि जो भी हम एडक्टर रिलेटेड एंड हिप रिलेटेड पेन होते हैं हमारे, तो उसको टर्मिनोलॉजी को एक डिफाइन किया कि कैसे हम किन कंडीशंस को किन कंपोनेंट्स के अंदर फिट कर सकते हैं. एंड देन उसमें से वन ऑफ द कंडीशन थी हिप रिलेटेड पेन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. सो आफ्टर 2014 2016 में एक वार्विक एग्रीमेंट आया था जिसने एफआई सिंड्रोम को जो इसकी डेफिनेशंस है एंड हाउ वी डायग्नोज इट उसने एक दोबारा रीडिफाइन किया. दैट इज आई थिंक द बेस्ट थिंग वी हैव टू डिस्कस. एंड देन आफ्टर 2016 2018 में ज्यूरिक हिप रिलेटेड एग्रीमेंट आया. एंड देन इन 2020 लिस्बन इमेजिंग फॉर एफआई सिंड्रोम, जो हम वार्विक एग्रीमेंट का एक एलोंगेशन मानते हैं कि एक डायग्नोसिस कैसे करते हैं उसका. एक वन ऑफ द कंपोनेंट व्हेन वी आर गोइंग टू डायग्नोस ट्रायड ऑफ द सिम्टम्स साइंस एंड इमेजिंग. तो उसको एक रीडिफाइन किया इमेजिंग हाउ वी परफॉर्म एंड व्हाट कैन बी द बेस्ट फॉर टू क्लिनिकल डायग्नोस. एंड देन आफ्टर 2022 में ऑक्सफोर्ड एक केमोर्फोलॉजी पे कंसेंसस आया. एंड देन इन 2024 ESS के हिप एंड ग्रोइन पेन. So about all those of years, what has been came, let's discuss about the management, what is going on and what are the controversial thing. So before going on, let's study about the little bit about FI syndrome. That is the main point of discussion today. अगर हम hip related pain को segregate करें तो it consist of three conditions जिसमें one of the FI syndrome आता है and then acetabular dysplasia, hip instability and other pathologies. ठीक है. So one of the major cause of hip related pain is FI syndrome, as we see in our clinical practice. So FA syndrome is a motion related or position related syndrome uh, that can be described on the basis of triad symptoms, clinical signs and the imaging findings. ठीक है. What can be the symptoms as it is motion related or position related? So pain, it can also refer to the back, buttock, thigh. In addition to the pain, patient may also describe clicking, catching, locking, stiffness, and restricted range of motion. And all these symptoms patient can report to us. So it is important to describe all these things in our clinical findings. So what we are discussing about diagnosis, how to diagnose FPI syndrome. So it is mainly depends on our three steps. As described by Warwick agreement, it's a triad of symptoms, our clinical signs that we are going to perform in our clinical examinations, and the imaging findings that redefined by Lisbon agreement in 2020. The imaging findings could be best for us is AP and Dun view in 45 degree. So it is all about diagnosis. Then if we are discussing about treatment, what can be the treatment option for us? Conservative care, PT lead treatment and surgical options. So as we are discussing, हमने introduction देखा, and then the question in front of all of us is, do the management of FPI is as simple as it is looking? जो हमारे पास ऑप्शंस हैं 3 to 4 ऑप्शंस एज जो हमारी क्लिनिकल फाइंडिंग्स में भी हम देखते हैं कि एक शेयर डिसीजन मेकिंग एक एज अ क्लिनिशियन एज अ फिजिशियन के लिए और क्या पेशेंट एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे. तो इज इट सिंपल लुकिंग और व्हाट इज गोइंग ऑन dilemma here that we have to discuss. So as we progress, we will see what's the evidence according to the hierarchy. We will focus on the good level of study, what they say and what are their findings. Then so that we can apply all those findings in our clinical practice. ठीक है. Not on the basis of what the
patient opinion and the therapist experience. But the best available evidence say we have to combine all those things and then we have to apply in our findings. So let's discuss. This is the systematic review and meta-analysis that came in 2022. What they compare is conservative therapy and arthroscopic surgery for the management of FAIS. There is like always a comparable goes on between what delivers the best outcomes, what delivers the uh, best surgical options for to decide on कि हमें कंजर्वेटिव चूज करना है या सर्जरी चूज करना है. सो इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हम सभी क्राइटेरिया सभी ऑप्शंस को एक माइंड में रख करके एक शेयर डिसीजन मेकिंग पे एक फाइनल डिसीजन लें. So in this article, they compare on the basis of these outcome measures that are written here. Uh, what they take international HIP outcome tool, HIP outcome score and daily quality of life. इन आउटकम्स के बेसिस पे उन्होंने कंपेयर किया हमारे जो भी ऑप्शन है कंजर्वेटिव थेरेपी एंड आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी. सो बिफोर गोइंग टू द कंक्लूजन, उसी के एक कपल ऑफ इयर्स बैक हमारे कुछ अच्छे लेवल की स्टडीज और आई थी जो मेटा एनालिसिस हैं. जैसे कि हम आगे भी क्रिटिकली एनालाइज करेंगे कि जो भी लेवल्स ऑफ एविडेंस होते हैं हमारे टॉप पे, अगर हम मेटा एनालिसिस अगर हमारा आरसीटी स्टडीज का है, ठीक है, दैट हमारे मस्ट रिलाई हो जाता है उन चीज पे, उनकी फाइंडिंग्स को अप्लाई करने के लिए, उन पे फोकस करने के लिए. बट दिस इज नॉट ट्रू इन एवरी केस. So we have to critically analyze every article if we are reading this, just not blindly follow if it is in top hierarchy, if it is a meta-analysis, that must be the good findings or एक must rely हो जाना चाहिए उस पे. We have to critically analyze what they have written and what are the limitations of that study. So in this, if we check that previous article was given in 2022, but in 21 and 2020, the same what they compare surgery and conservative options. So in 2020, by Bestas et al., surgery is no more effective than conservative treatment. What they conclude is there is moderate quality of evidence that surgical treatment is not superior to conservative treatment for FAI syndrome in short term. And there is very low to moderate evidence that is not superior in the medium term. अगर हम short term and medium term and long term को compare करें, अगर हम surgical options पे ज़्यादा rely हो रहे हैं, and there is not so much और एक superior evidence हम बोल सकते हैं कि conservative से better है वो. But in 2021, what they compare is short term clinical outcomes जो भी हो सकते हैं हमारे in the patient with FAI syndrome, and they came out with conclusion that surgery is better in short term if we compare to the conservative therapy. So all these three articles, what we see कि एक 2022 में 21 में 20, all they came with a different findings. Although all these studies are very good study जो हम देख रहे हैं मेटा एनालिसिस है, and all include RCT study in their review. So what we have to follow, अगर हम एक कंक्लूजन पे आए कि क्या हमें करना है, अगर हम एविडेंस भी पढ़ रहे हैं तो एक कंफ्यूजन हो जाएगा हमारे सामने कि क्या बेटर है. अगर हम किसी एक आर्टिकल को उठा के देखें और उसकी फाइंडिंग्स को हम डायरेक्ट अप्लाई करें, दैट इज नॉट ट्रू. अगर हमारे पास ऐसी 3-4 गुड लेवल ऑफ स्टडी है एंड दे आर कमिंग विद अ डिफरेंट कंक्लूजन, डिफरेंट फाइंडिंग्स, सो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, क्रिटिकली अप्रेजल करें उन आर्टिकल्स को, उनको देखें कि उनकी एक्चुअल में स्ट्रेंथ कितनी है एंड व्हाट दे एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ, क्या उनकी क्लिनिकल स्ट्रेंथ है एंड हाउ वी कैन अप्लाई देम. सो इफ वी कंपेयर ऑल दीज 3 आर्टिकल्स जो रिसेंट आए हैं सर्जिकल और कंजर्वेटिव ऑप्शंस को कंपेयर करने के लिए, जो हम लेवल ऑफ एविडेंस में भी देखते हैं, जो टेबल हमारी स्क्रीन पे गिवन है. And then after comparing all these, what kind of studies they consist and what are the risk of bias in all those studies and how they plot all these studies and what outcomes they consider to compare all these. On the basis of that, we came across to the 2 studies that first one is 2021 that compare, although both studies compare both treatment options, surgical or conservative.
बट जो 2021 में स्टडी आई थी उन्होंने बताया था कि कंजर्वेटिव ऑप्शन इज मच बेटर इन शॉर्ट टर्म एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। बट जो 2022 में स्टडी हमने स्टार्टिंग में देखी थी, दैट केम आउट विद अ फाइंडिंग कि हमारी सर्जिकल ऑप्शन हमें ज़्यादा बेटर है अगर शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म की हम बात करेंगे। बट अगर हम उनको क्रिटिकली एनालाइज करें तो जो मेथोडोलॉजी में हमें एक ग्राफ देखने को मिलता है, जो फॉरेस्ट प्लॉट भी हम बोलते हैं, तो इसमें एक रैंडम इफेक्ट एंड फिक्स इफेक्ट दैट केम इनटू प्ले। जो हमारी 2021 वाली स्टडी में उन्होंने रैंडम इफेक्ट यूज किया है, दैट इज मच बेटर। रैंडमाइजेशन इज हमारे लिए क्लिनिकल रिलायंस के लिए काफी अच्छा है, काफी गुड फाइंडिंग्स हम उसको बोल सकते हैं। बट इन 2022 देयर इज अ फिक्स्ड इफेक्ट। सो देयर इज हम उस पे ज़्यादा रिलाई नहीं हो सकते उनकी फाइंडिंग्स पे, क्योंकि उन्होंने फिक्स्ड इफेक्ट यूज़ किया है। एंड ऑल्सो जो हमारी 2021 वाली स्टडी है, उन्होंने 3 स्टडीज़ को जो भी पास्ट रिसेंट हमारी आरसीटीज़ हुई हैं, उनको इंक्लूड किया। बट 2022 में डिस्पाइट ऑफ 1 साल बाद भी, तो उन्होंने 2 स्टडीज़ को ही इंक्लूड किया है। सो देयर इज़ मच लिमिटेशंस एज़ कंपेयर टू द 2021 स्टडी। सो हाउ वी कैन कंक्लूड जो भी हमने पढ़ा है अभी, जो आफ्टर क्रिटिकल अप्रेजल, आफ्टर क्रिटिकल एनालाइजिंग ऑल दिस आर्टिकल्स, व्हाट द स्टफ इज अवेलेबल ऑन दिस टॉपिक, जो हमारा एक काफी हॉट टॉपिक हम बोल सकते हैं कि सर्जरी पे ऑप्ट करना है या कंजर्वेटिव पे ऑप्ट करना है। बिकॉज अगर हम आगे भी देखेंगे कि पेशेंट का एक्सपेक्टेशन रहता है कि अगर हमें इस ऑप्शन से आउटकम्स नहीं मिल रहे हैं या बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, तो सर्जिकल एक मोस्ट कॉमन बन चुका है एथलीट्स में भी या कॉमन पॉपुलेशंस में भी, जो भी हम रेगुलर देखते हैं हमारी प्रैक्टिस में। बट क्या एक्चुअल में सही है वो एक पेशेंट के एक्सपेक्टेशंस पे काम करना, कि क्या वो मानता है या क्या हमारे एक इग्नोरेंस में हम उस चीज को फॉलो करे जा रहे हैं। ठीक है, व्हाट वी हैव टू फॉलो इज व्हाट इज रिटन इन एविडेंस, what is actual there. So, as a conclusion, तो सर्जरी शुड नॉट बी द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर एफआई सिंड्रोम। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हमें कंजर्वेटिव पे ही ज्यादा रिलाई करना चाहिए। बट इट इज नेसेसरी इन केसेस व्हेन कंजर्वेटिव ऑप्शंस आर एग्जॉस्टेड। अगर हमने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट को टाइम दिया एंड दे एग्जॉस्टेड, दे फेल्स, दे डिडंट केम विद द सेम आउटकम्स, सो हमें सर्जरी पे रिलाई करना पड़ता है। सर्जरी कैन बी द बेटर ऑप्शन, बट एज अ सेकेंडरी। And also there is an emerging evidence for exercise therapy if more than 3 months for FAI syndrome. ठीक है, that is here that cartoons depicts कि what do you hate the most. Critical thinking is most important if we, अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे आना है, एक अच्छे बेटर डिसीजन पे आना है, शेयर डिसीजन मेकिंग पे आना है, सो दोनों ऑप्शंस को अगर ट्रीट करेंगे, हम किसी को सुपीरियर नहीं बोल सकते हैं कि कंजर्वेटिव इज मोर सुपीरियर देन सर्जिकल, सर्जिकल इज मोर सुपीरियर देन कंजर्वेटिव। बोथ हैव अ डिफरेंट वे ऑफ लाइन। किस बट डिपेंड करता है कि हमारी क्या कंडीशंस है, क्या डिमांड्स है, एंड क्या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल्स लेके हम चल रहे हैं। तो बोथ ऑप्शंस कैन बी बेटर इफ वी फॉलो दिस कंक्लूजन। सो अगर हम आगे प्रोसीड्स करें, तो एक शेयर डिसीजन मेकिंग हाउ वी फॉलो, अगर हम एज अ फिजियो, एज अ क्लिनिशियंस हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड एंड अगर हम पेशेंट को भी वो चीज बताएं, अगर हमें वो चीज क्लियर होगी तो ही हम फिजिशियन या एक जो हमारी टीम होती है, मल्टी टीम, तो उसके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं, उनके साथ फाइंडिंग्स रख सकते हैं कि क्या बेटर है क्या नहीं है अकॉर्डिंग टू द एविडेंस एंड एज अ बेस्ट प्रैक्टिस। So in shared decision making, what we have to ask and what we have to advise the patient and physician, if we are going to discuss, surgery has a risk and patient reported outcomes may improve by up to 20 points but not likely to return to normal. अगर हम सर्जरी की बात कर रहे हैं, नॉट एवरीवन रिटर्न टू स्पोर्ट्स एट प्री इंजरी लेवल विद ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। ठीक है, तो हमें ये पॉइंट्स उसके सामने डिस्कस करने पड़ते हैं एज ए रियलिटिक विदाउट एनी बायस। And as we see in the hierarchy, agar physical activity that is any person is doing without any restrictions, ठीक है, बट एक्सरसाइज थेरेपी इज टारगेटेड रिहेबिलिटेशन। अगर कहीं पे कुछ इश्यू आया है तो उस पे अगर एफआई सिंड्रोम की हम बात करें, तो जो भी रिलेटेड स्ट्रक्चर है उसको टारगेट रिहेब करके देन उसको रिटर्न टू स्पोर्ट्स या रिटर्न टू एक्टिविटी कराते हैं। एंड देन द सर्जिकल ऑप्शन इज देयर दैट केम टू द लास्ट,
कि वो एक हमारा सेकेंडरी ऑप्शन रहेगा। पहले हमें एक्सरसाइज थेरेपी और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे बेटर रिलाई कर सकते हैं। सो व्हाट वी आर फोकसिंग अबाउट कि हम कंजर्वेटिव ऑप्शंस को एक ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में। तो हाउ वी कैन फॉलो व्हाट इज रिटन देयर एंड हाउ टू फॉलो दैट पीटी इंटरवेंशंस. So there are these two articles. We can the good level of study that came couple of years ago. So what we have to follow as an initial treatment. The findings is the in supervised physiotherapy programs, we have to focus on active strengthening of soft tissue structure around the hip and core strengthening, rather than if the program is unsupervised, passive and non-core focus program, that is एक scattering, एक irrelevant program हो जाएगा हमारा. And the most important is to follow its biopsychosocial model that कंसिस्ट ऑफ आवर थ्री कंपोनेंट. इसमें बायो कंपोनेंट होगा जिसमें हम हिप स्ट्रेंथ, ट्रंक स्ट्रेंथ एंड फंक्शनल, प्लायोमेट्रिक एंड बैलेंस ट्रेनिंग इन पे फोकस करते हैं, रेदर देन ऑल दिस फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट. हम साइको जो हमारे that align with our goals and values, what the patient expect, and how are they feeling with their functional limitation. So and with social, how they're interacting with other persons and other peoples. So all these components are very important when we are going to manage the patient as a conservatively and within our PT interventions. Okay. So if we proceed further, uh, this is the most important articles, very good article that came in 2024 in JOSPT. So what they compare is if we have a treatment options, जो PT interventions की हम बात कर रहे हैं, what patient expect about this treatment, what are their goals, क्या वो उन एक्टिविटी को फुलफिल कर पा रहे हैं अगर वो PT interventions को चूज करते हैं, and what is the wide gap between this treatment and the patient preference, what they expect. एंड आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन कि कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है, ठीक है, तो एक अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस है किसी भी ट्रीटमेंट से रिलेटेड, तो वो एक अ, उस चीज को इम्पोर्टेंस को जाने बिना ही या उस चीज को देखे बिना ही, तो वो एक सर्जिकल ऑप्शन मोस्ट कॉमन रिलाई करते हैं उस पे कि हमें सर्जरी पे ही ज्यादा प्रेफर करना है. बट ऐसा नहीं है, अगर हम एविडेंस के बेसिस पे ही देख रहे हैं कि क्या हमारे लिए बेस्ट है, बट डिपेंड करता है. एक हार्ड एंड फास्ट रूल हम नहीं बोल सकते कि दिस इज द बेटर ऑप्शन इन ऑल दिस पॉपुलेशन एंड इन एवरी पेशेंट. दैट डिपेंड ऑन द कंडीशंस एंड सेवरल अदर फैक्टर्स केम इनटू प्ले. सो अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल्स व्हाट दे कंक्लूड कि जो भी हमारे गोल्स होते हैं, exercise related goal, activities of daily living, pain related goal and physical functions related goal. ठीक है, all these अगर combine करें हम तो there are lot of limitations and there is a wide gap that we have to fill. अगर एज ए क्लिनिशियन हम काम कर रहे हैं, नॉट जस्ट ऑन द फिजिकल स्ट्रक्चर्स, हमें उसके साइकोलॉजिकल एंड व्हाट दे एक्सपेक्ट अबाउट द ट्रीटमेंट, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. सो वी कंक्लूड हियर कि अगर हम हमने एक्सपेक्ट को देखा कि क्या हमें फोकस करना चाहिए अगर एफआई सिंड्रोम की हम बात कर रहे हैं, अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में भी जिन चीजों पे हमें फोकस करना है एंड बट देयर इज अ वाइड गैप. अगर हम रियलिटी में देखें कि पेशेंट क्या एक्सपेक्ट करता है एंड क्या हमें फॉलो करना है, ठीक है, तो हम उस चीज को गैप को फील करेंगे तभी हम एक बेटर आउटकम्स ला सकते हैं, एक बेटर प्रैक्टिस कर सकते हैं. For all the physios on this topic, we need full-scale RCTs for best practice, and we need physios to come together and develop standardized, effective approach, leaving bias and Guruism behind. ठीक है, all those जो भी एक हमारी प्रैक्टिस को या हमारे प्रोफेशंस को पीछे की तरफ खींचते हैं, तो हम उन सबको छोड़ करके जो भी हम बेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, बेस्ट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कर सकते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड वी नीड टू लिसन टू द पेशेंट. ठीक है, नॉट ऑल पेशेंट वांट सर्जरी and not all patient can commit and afford 3+ months of physiotherapy and equitable funds. ठीक है, सो डिपेंड करता है कि क्या पेशेंट कंडीशंस हैं एंड हम देख सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं कि क्या पेशेंट एक्सपेक्ट करता है. अकॉर्डिंग टू देम वी कैन कम टू अ फाइनल शेयर डिसीजन मेकिंग.
And to follow the best evidence-based practice, there's a platform, Movement Care Lab MCL. You can follow on social media, Instagram, and there is a WhatsApp group. You can discuss there if you have any doubts. So tell us your major takeaway from this lecture. If you find it helpful, please do comments and tell us what you are learning from this lecture. So do not forget to our YouTube channels, subscribe this, and we are coming with lot of other topics in this evidence-based practice series. So you can improve your clinical practice and just came to a point of critical thinking, critical reasoning.